Good morning, class 10th. Unfortunately, I had made the video yesterday as well, but it could not be uploaded somehow due to technical snag. Now, friends, I shall be taking up again and word for word. Please take a pen and notebook with you so that you may take down the tough words and read them again. Now see, we were discussing about apartheid, although I have taken this lesson earlier also, but this time I'm going to take it up word for word. जिसे अक्सर लोग word by word या word to word कह देते हैं, यानी कि शब्दशः मैं इसको explain करूँगा, and please bear with me. Mandela becomes South Africa's first black president, यानी कि उनकी उपलब्धि ही यही है कि he became the first black president of South Africa. क्योंकि उससे पहले there was apartheid, apartheid. Apartheid is the distinction या discrimination between white and black and brown and other sorts of people. यानी कि किन्हीं भी लोगों के बीच में भेदभाव, यानी कि लॉ के अनुसार ये कहना कि फला व्यक्ति यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, इस तरह की जो नीति होती है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है, और यही अपार्थाइड कहलाता है. Now friends, Nelson Mandela has become South Africa's first black president, यानी कि पहले black president बने साउथ अफ्रीका के, after more than 3 centuries of white rule, यानी कि 300 सालों तक whites इन पर रूल करते रहे, यानी कि the persons who had white skin. And at Mr. Mandela's African National Congress, यानी कि ANC party won 252 of the 400 seats. 400 सीटें थी साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में, and it was won by, means his party won by a majority, and that was 252 seats they were able to acquire in the first democratic elections of South Africa's history, यानी कि पहली बार प्रजातांत्रिक रूप से जो वहाँ इलेक्शंस हुए उनमें. The inauguration ceremony, यानी कि जो opening ceremony थी, inauguration is when something happens for the first time. Inauguration of a shop also happens, inauguration of various institutions happen. So the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre. Union Buildings Amphitheatre में यहाँ inauguration या opening ceremony हुई in Pretoria today. उस दिन की बात कह रही है, इंडिपेंडेंस डे के दिन की अपने. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और इसको अटेंड किया गया 140 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधियों द्वारा. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि कभी भी, आज से कभी भी, यानी कि यहाँ ऑपरेशन इस धरती पर कभी नहीं होगा. ऑपरेशन माने टायरनी, यानी कि भेदभाव, एक दूसरे को दबाना, means to suppress the spirit of others. ये it will never happen again. Jubilant scenes on the streets of Pretoria, और कई मतलब खुशियां मनाते हुए scenes in the streets of Africa. Streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. यानी कि सभी लोगों ने, ब्लैक, वाइट और भी कई तरह के लोगों ने वहाँ की स्ट्रीट्स में सेलिब्रेशन किया, यानी कि खूब जश्न मनाया. More than 1 lakh South African men, women and children of all races, यानी कि सभी जातियों के, प्रजातियों के, sang and danced with joy. सभी ने नाच गाना किया और खूब खुशी से झूमे. 10th May dawned bright and clear, यानी कि 10 मई जो है कि सुबह शानदार थी. Dawn वैसे डे ब्रेक को कहते हैं, यानी कि it emerged or it rose bright and clear. For the past few days, पिछले कई दिनों से I had been pleasantly besieged by dignitaries. Besieged means surrounded. I was happily surrounded by many dignitaries and world leaders
who were coming to pay their respects before the inauguration. यानी कि जो मुझे बधाई देने आ रहे थे, जो हमारे साथ शामिल होने यहाँ आए हुए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर इतना बड़ा ये इनॉग्रेशन सेरेमनी या इतनी बड़ी लार्ज गैदरिंग, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा जमावड़ा, वो भी वर्ल्ड क्लास लीडर्स का पहली बार हुआ था हिस्ट्री में. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. और ये जो सेरेमनीज थी ये कहाँ हो रही थी? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. हमारे हिंदुस्तान की भी काफी पुरानी बिल्डिंग जो है वो सैंडस्टोन की बनी हुई है बच्चों. और एम्फीथिएटर होता है जैसे स्टेडियम होता है, चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं और बीच में ग्राउंड होता है. बिल्कुल इसी तरह से एम्फीथिएटर होता है, यानी कि जहाँ चारों तरफ सीढ़ियों में दर्शक बैठते हैं और नीचे जो है स्टेज होता है. आपने अगर सन सिटी में शायद देखा होगा, मेन गेट से उतरते वो जो है एम्फीथिएटर है छोटा सा. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स में बना हुआ था प्रिटोरिया की. फॉर डिकेड्स, यानी कि दशकों से, डिकेड कहते हैं 10 वर्ष के समय, डिकेड्स मीन्स दशकों से. दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी की सीट थी, यानी कि सुपीरियरिटी सीट थी. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग. रेनबो गैदरिंग मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ऑल कलर्स एंड creeds. Even the skin colors also differed, but they were there. Of different colors and nations, और कई राष्ट्रों के लोग वहां जमा थे. For the installation of South Africa's first democratic non-racial government. पहली साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक. प्रजातांत्रिक क्या होता है? जहां लोगों को अधिकार होता है, हर एक वोट का महत्व होता है, जैसा कि हिंदुस्तान में. इसे डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. नॉन रेशियल से क्या मतलब हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप व्हाइट हैं, ब्लैक हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या कोई भी है, आपको बराबर का स्थान. ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट. ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो पतझड़ का दिन था, कह रहे कि लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जिनानी. उनकी डॉटर उनके साथ थी, उसका नाम जिनानी है. ऑन द पोडियम, पोडियम माने जिसपे लेक्चर देता है इंसान, जो लकड़ी का फ्रेम होता है. मिस्टर डे क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn in as second deputy president. मिस्टर डे क्लार्क ने पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली. देन थाबो म्बेकी वॉज स्worn in as first deputy president. उसके बाद थाबो म्बेकी ने पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली. When it was my turn, जब मेरा टर्न आया तो I pledged to obey and uphold the constitution. मैंने फिर उसके बाद शपथ ली इस बात की कि मैं प्रतिबद्ध रहूंगा ओबे करने के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा, अपने आप को समर्पित करूंगा इस रिपब्लिक के लिए, इस गणतंत्र के लिए और साथ ही इसके लोगों के लिए. मैं पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से काम करूंगा. To the assembled guests, यानी कि जो जमा हुए वहां पे गेस्ट थे, and the watching world, और जो पूरी दुनिया इसे टीवी पर देख रही थी, I said, उनसे मैंने कहा कि today all of us do by our presence here, आज हम लोग ये कर रहे हैं अपनी उपस्थिति से यहाँ पर, confer glory and hope to newborn liberty. हम ग्लोरी का प्राइज दे रहे हैं एक किस्म से और होप दे रहे हैं टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. ये नई जन्मी हुई नवजात ग्लोरी को, शान को, और लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स आजादी को, इमेंसिपेशन को, फ्रीडम को, लिबरेशन को, यानी स्वतंत्रता. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि इतने सालों तक रंग भेद होता रहा और ब्लैक्स पर अत्याचार होते रहे, नीग्रोज पर अत्याचार होते रहे, अफ्रीकन पर. उसके बारे में बात कर रहे हैं कि दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबा चलता रहा. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, लेकिन इससे एक सोसाइटी ऐसी जन्म लेनी चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे सारी इंसानियत को गर्व. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो कि आउटलॉज के तौर पे पहचाने जाते थे. आउटलॉज मतलब लॉ ब्रेक करने वाले, लॉ ब्रेकर्स के तौर पे हम पहचाने जाते थे.
have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world. हमें आज rare privilege मिला है, यानी कि rare privilege means special right or duty to be host. हम मेजबानी कर सकें इतने देशों की, यहाँ स्वागत कर सकें to the nations of the world, पूरे राष्ट्र मतलब कई राष्ट्र के लोगों का on our own soil के अपनी धरती पर. We thank all of our distinguished international guests. हम अपने जितने भी महानुभाव इंटरनेशनल गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं, यानी कि हमारे देश से अलग के जो भी लोग यहाँ पे हैं, for having come to take possession with the people of our country of, और जो कि इसको अपनाना चाहते हैं, of what is after all a common victory for justice. ये हमारे लिए कॉमन विक्ट्री है, कॉमन जीत है. विक्ट्री मीन्स जीत, विन. फॉर जस्टिस कि हमने न्याय की जीत हासिल की है. फॉर पीस और शांति के लिए. फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव के सम्मान के लिए. यानी कि आपने हमें ज्वाइन करा, उस बात के लिए भी वो उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. हमने राजनीतिक स्वतंत्रता आखिरकार जीत ली है. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और हम आखिर में शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को गरीबी की इस बॉन्डेज से, गुलामी से हम मुक्त करेंगे. डिप्राइवेशन यानी कि जो उनके पास जो कुछ उन्हें नहीं मिल पाता है, यानी कि जिसकी कमी रह जाती है, उससे हम इसे दूर करेंगे. सफरिंग यानी कि जो कुछ वो सफ़र कर रहे हैं या जिससे पीड़ित हैं, उसको दूर करेंगे. जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये आदमी है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार, औरत है तो ऐसा, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा. एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी इस बिना पर किसी भी तरह का किसी से भेदभाव नहीं करा जाएगा. यही सिविलाइज सोसाइटी के लक्षण है बच्चों. तो इसका वो वादा कर रहे हैं. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल गेन एक्सपीरियंस the oppression of one by another. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये हमारी जो धरती है ऑपरेशन के लिए, अत्याचारों के लिए, दूसरों से ये यूज हो पाएगी आज के बाद. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और इतने शानदार ह्यूमन अचीवमेंट पे ये सन कभी भी सेट नहीं होगा. कहने का अर्थ ये है, इसमें सूरज कभी अस्त नहीं होगा. कहने का मतलब ये नहीं है कि जो रियल सन है, कहने का अर्थ यह है जो हमें रोशनी मिली है, ये ज्ञान की रोशनी मिली है, ये सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए. ये एक मैंने बताया कि ये सिविलाइज्ड नेशन का लक्षण है, और किसी के साथ भी किसी भी तरह का व्यवहार नहीं होगा, और यही मानवता भी है. नाउ लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. यानी कि यहाँ हमेशा शासन रहे फ्रीडम का, स्वतंत्रता का, और गॉड ब्लेस अफ्रीका. गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका उन्होंने कहा है, यानी कि पूरे अफ्रीका के लिए उन्होंने कहा है. बच्चों इसी तरह से आई शुड बी कंटिन्यूइंग दिस स्टोरी वंस अगेन, एंड वी शैल टेक एवरीथिंग वर्ड फॉर वर्ड, एंड देयर आफ्टर इफ आई गेट द बोर्ड आई शुड बी टेकिंग अप द राइटिंग वर्क ऑल्सो, लेकिन आई हैवंट गॉट इट सो फार. तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बेयर विद मी पेशेंटली प्लीज. थैंक यू.